السلام علیکم دوستو، الاعراف آن لائن اکیڈمی کی جانب سے یہ اے آئی کی کلاس ہے۔ آپ اب تک ہماری 3 کلاسیں اٹینڈ کر چکے ہیں، جس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ ہم اب تک کیا کیا کر چکے ہیں۔ ہم اے آئی کو سمجھ چکے ہیں، اس کی مختلف کیٹیگریز، رائٹنگ میں، امیج کریشن میں، کانٹینٹ کریشن میں، یا جو ویڈیو کریشن ہے اس کے بنیادی فنکشنز کو سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم اگلی کلاس میں رائٹنگ پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری 3 ویڈیو پر مبنی ورکشاپ پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ اس ورکشاپس کی کلاسز کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ جا کر دیکھیں گے تو آپ کے بہت زیادہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم تھوڑی سی بنیادی باتیں سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح اے آئی کو اپنی بہتر رائٹنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اسکرین پر۔ میں کچھ آپ کو ڈیمو دکھاؤں گا اور کچھ میری اپنی پریکٹسز اور ٹرکس اینڈ ٹپس بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ کا صرف تعاون درکار ہے کہ آپ اس ویڈیو پر اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ میں آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا سیکھنے کا عمل پہنچ سکے۔ میں آپ کے تعاون اور محبت کی بہت قدر کرتا ہوں جو آپ اپنے کمنٹس اور فیڈ بیک کے ذریعے مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو چلیں اسکرین پر چلتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اے آئی کے ذریعے لکھنا اور اے آئی سے لکھوانا کیسے مختلف ہے۔ اس پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کلاس میں ہمارا گول یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر سمجھ پائیں کہ کس طرح اے آئی کے ذریعے بہتر لکھا جاتا ہے۔ میری سمجھ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پہلے ہی لکھنا جانتے ہیں۔ تھوڑی بہت آپ کو سمجھ ہے کہ کیسے لکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ بس اے آئی سے لکھوائیں اور آپ اسے کریں، خود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ نہیں ہوگی، پھر اس کا لکھا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ آپ کے لیے زیادہ مددگار نہیں رہے گا۔ تو تھوڑی بہت بیسکس آپ کو آنا چاہیے۔ آپ کو اپنا مسئلہ بتانا آنا چاہیے، یا اپنی کہانی یا کوئی خبر سمجھنا آنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا انسٹرومنٹس شامل ہوتے ہیں۔ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم لکھنے کے عمل کو بہتر کریں۔ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ورکشاپ کی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اے آئی سے لکھوانا اور اے آئی کے ذریعے لکھنا ایک جیسا نہیں ہے۔ اے آئی سے لکھوانا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کوئی پرومپٹ دے گا کہ مجھے ایک کہانی لکھ کر دو، ایک بچے کی یا محبت پر نظم لکھ کر دو، یا پاکستان پر ایک مضمون لکھ کر دو، وہ سب لکھوا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو گول ہے اس کلاس کے ذریعے جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اے آئی سے مدد لے کر اپنا کام بہتر کریں۔ آئیڈیا جو مین ہے وہ ہمارا ہی ہو، اے آئی ہمیں اسے بہتر دکھانے، محسوس کرنے اور لکھنے میں مدد کرے۔ اس کے لیے کچھ ٹرکس اینڈ ٹپس ہے، ان پر بات کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ ڈیمو دکھاؤں گا کہ آپ کیسے عملی طور پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اپنے ارادوں کو واضح رکھیں۔ یہ ایک انٹینشن ہونی چاہیے۔ جب آپ لکھنے آئیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بنیادی طور پر کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ اچھا موڈ ہوتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ جانتے ہوں کہ میں ایک مضمون لکھنا چاہتا ہوں پانی کے مسئلے پر، اور میرا گول یہ ہے کہ میں لوگوں کے ذہن میں آگاہی یا شعور پیدا کروں، تو آپ کا ارادہ واضح ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ واضح نہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، خود سمجھنا چاہتے ہیں یا حکومت کو بتانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی نیت واضح نہیں ہوگی۔ آپ اپنا مسئلہ یا مقصد واضح کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مسئلے کو ہائی لائٹ کریں یا متعلقہ اداروں کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں تو ارادہ واضح کریں۔ آپ بہتر تحریر لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کی کہانی یا مضمون میں بھی یہی اصول لاگو ہوگا۔ آپ نے اگر کہانی لکھوائی ہے تو آپ کا ارادہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ سبق آموز کہانی بنانا چاہتے ہیں، تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں، یا تجربہ سے بھرپور کہانی لکھوانی ہے۔ اے آئی کو ابتدائی طور پر آپ اپنا ایک نقطۂ آغاز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنا ارادہ بتائے، مثال کے طور پر کہ میرا ارادہ یہ ہے، پھر کہے کہ تم مجھے برین اسٹورمنگ کے لیے آئیڈیاز دو۔ یہ چیز آپ کو برین اسٹورمنگ کے آئیڈیاز دے گی، جو وہ بتائے گی اس سے آپ شروع کریں گے، پھر آپ اپنا فیڈ بیک دیتے جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بار بار ترمیم کریں۔ اگر ایک بار اس نے جواب دیا اور آپ اسی پر راضی ہو گئے یا بہت تیز رفتار میں آ گئے تو آپ نے درست طریقے سے نہیں جانچا۔ آپ بار بار اس سے پوچھیں کہ یہ کیوں لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس بات کو ایسے کہوں تو کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بار بار آپ کے لیے چیزوں کو مختلف زاویوں سے واضح کرے گی۔ اے آئی کا بڑا فنکشن یہ ہے کہ وہ تھکتی نہیں ہے۔
बार बार दोहराई करने पर भी जवाब देगी। अगर उसने हेडिंग, टाइटल या ओपनिंग दी है और आपको पसंद नहीं आया तो उसे बदलने को कहिए। बोले उसको दूसरे अल्फाज में लिखो, उसका पर्सपेक्टिव बदल दो। अल्फाज का चुनाव सख्त या नर्म करो, जज्बाती बना दो, इंगेजिंग बनाओ। ये सब अल्फाज जब जवाब देंगे तो वो उसी हिसाब से बदल देगी। अगर आपको समझ नहीं आता कि आपको किस तरह लिखवाया जाए तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। मिसाल के तौर पर आपने एक रोमांटिक कहानी लिखनी है। आप एआई के पास जाएं किसी भी टूल पर और कहें कि रोमांटिक कहानी में जो 5 बुनियादी चीजें होती हैं वो क्या है। वो आपको बताएगी कि दुनिया भर में जो रोमांटिक कहानियां लिखी जाती हैं उनमें वो 5 बुनियादी चीजें क्या है। अब आपको एक खाका मिल गया कि ये चीजें होनी चाहिए। आइडिया आपका होगा, मगर एक स्ट्रक्चर आपको मिल गया कि आप कहां से और किस पर्सपेक्टिव से अपनी कहानी बेहतर कर सकते हैं। फिर जब आप लिखवाएं और फीडबैक देते रहें तो उसे बार बार दोहराओ। मिसाल के तौर पर मैंने पहले बात की, उसकी ये ताकत है कि वो बार बार रिपीट काम करने से थकती नहीं। उसे बार बार रिपीट करवाएं। जब आपको लगे कि चीजें बेहतर हैं तो आप उसको अपना अंदाज भी बताएं कि मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में रहने वाला हूं, या मैं मजहबी नुक्ता नज़र से सोचता हूं, या मैं कल्चरल नुक्ता नज़र से सोचता हूं, या मैं गुर्बत के नुक्ता वाला हूं, जाविये से सोचता हूं, या मैं बड़ी सोसाइटी या जॉइंट फैमिली के पर्सपेक्टिव से सोचता हूं। ये जो आप अपना नजरिया देंगे इससे वो आपके कंट्रोल में रहेगी कि आप एक तहरीर को किस तरह लिखवाना चाहते हैं और किस तरह समझाना चाहते हैं। जितनी रहनुमाई देंगे इतना बेहतर नतीजा आपको मिलेगा। ऐसी कहानियां या मज़ामीन लिखवाएं जहां नंबर्स या हक़ाइक़ हों तो एआई गलतियां कर सकती है। इसलिए दी गई मालूमात पर फौरन यकीन मत करें। मिसाल के तौर पर अगर वो कह दे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान शाहिद आफरीदी है तो आप छाप दोगे, ये गलत होगा। बाज़ औक़ात वो फैक्चुअल गलतियां कर सकती है। अगर आप फैक्ट्स में गलती करेंगे तो आपकी तहरीर का एतबार ख़त्म हो जाएगा। चुनाचे फैक्ट्स को चेक करें, करना ज़रूरी है। जब वो आपको लिख कर दे तो उससे बार बार सवाल करें। दोबारा कहे वो क्यों इस तरह लिखा, अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा। जितना सवालात करोगे उतना ही वो होशियार होगी और बेहतर नताइज देगी। मिसाल के तौर पर आप उसे एक उन्वान दें, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी पर एक मजमून लिखो कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों रही। वो लिख कर देगी। फिर आप खुद लिखें कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी नहीं रही कि सिलेक्शन गलत थी, टीम तैयार नहीं थी, पुराने प्लेयर्स काम नहीं कर रहे थे। अब उसको बताएं इस पर तुम्हारी क्या राय है। जब आप राय मांगोगे तो वो मजीद इनपुट्स, डेटा और इंफॉर्मेशन लेकर आएगी और आपके दिए हुए मजमून को ज्यादा एम्पावर करती है। जितनी बार आप इसके साथ एंजॉय करेंगे और इंटरैक्ट करेंगे उतना बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छी बात यह है कि कुछ बुनियादी एहतियातें हैं जिनसे बचना चाहिए। बेमानी सवालात ना करें। ऐसे सवालात जो उलझन पैदा करें मत करें, और कभी भी पहले जवाब पर मुकम्मल इन्हिसार ना करें। क्रिएटिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए। इंसान की तख्लीक का मुकाबला मशीन से नहीं किया जा सकता। जो आइडिया दुनिया में मौजूद नहीं वो आपका होना चाहिए, क्योंकि एआई के पास वो नहीं होगा। एहतियात ये भी है कि अगर फैक्ट्स हैं तो उन्हें ज़रूर चेक करें। अब अंदाज, लहजा और ज़रूरी तरमीम की तरफ आते हैं। जब आप कहें कि ये इस तरीके से नहीं, इस अंदाज में करो, तवाज़ुन और जज्बात उसी वक्त आएंगे जब आप रहनुमाई करेंगे। बताएं कि हमें किस पर्सपेक्टिव से चाहिए। मसलन लिखना है बतौर राइटर, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर क्रिकेट के जज्बाती खिलाड़ी या बतौर किसी निज़ाम से तंग शख्स। इसे मुकम्मल कंट्रोल ना दें, बल्कि फ्रीडम दें, मगर रहनुमाई भी दें कि ऐसा करो, वैसा करो। फिर आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलेंगी। आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी, ग्रोक, डीप सीक वगैरह। बुनियादी चीज़ें जो मैंने बताई है वो सब टूल्स में यकसा रहेंगी। अब मैं आपको एनालिसिस वाले पर्सपेक्टिव का एक मिसाल देना चाहता हूं। फर्ज करें आपके पास कुछ मवाद पहले से है और आप इस पर तज्जिया लिखना चाहते हैं। मेरे पास एक ड्रॉप शिपिंग की फाइल है। अब हम क्या करते हैं कि इस फाइल को ग्रोक में डालें या किसी टूल में कहिए कि अब ये जो फाइल है इसने रिपोर्ट का मवाद उठा लिया है। आप देखें कि इसने सारा मवाद रिपोर्ट से निकाल कर दिया है। अब चूंकि ये फैक्ट सही है और मैंने रिपोर्ट एक मुस्तनद इदारे की दी है तो ये मालूमात दुरुस्त रहेंगी। अब वो मुझे बता रही है कि रिपोर्ट में कौन कौन से पहलू है।
इसने रिपोर्ट के तमाम अवामिल टीटीपी वगैरह शामिल कर दिए हैं। वो मुझे हाइलाइट्स दे रही है, वो मुझे ब्रॉनस्टॉर्मिंग करके आउटलाइन दे रही है। अब मुमकिन है कि मुझे कुछ पॉइंट से इख्तलाफ हो या मैं चाहूं कि मैं अपना इंट्रो शामिल करूं ताकि मैं उसे लाइव कर सकूं। बुनियाद मेरा आइडिया था, अब मुझे वो आउटलाइन मिल गई है। अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूं। सवालात कर सकता हूं कि ये शामिल मत करो या ये थोड़ा सेफ नहीं है। मैं कहूंगा कि मुझे इस खाके को एक मजमून की सूरत में दो, जज्बाती अंदाज में लिखो, हेडिंग्स मत देना और आखिर में उम्मीद अफजा पैगाम शामिल करो। अब मेरे पास आउटलाइन आ गई जिसमें मेरा इनपुट शामिल है। आप देखें ऊपर वाला हिस्सा मेरा पर्सनलाइज्ड हिस्सा आया हुआ है और नीचे मसले को असल में बयान कर रहा है कि मसला क्या है और हम किस तरह इस पर बात कर सकते हैं। अब जब ये लिखा, मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि एआई का लिखा हुआ फौरन डिटेक्ट हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि हर चीज डिटेक्ट हो। जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपकी तहरीर को गैर मशीनी बनाता है। मैंने जो भी लिखा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और रिपोर्ट का हवाला भी मैं दे रहा हूं। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। पिछले दिनों एक कंपनी ने कहा कि आप हमसे $50 ले लें और आप हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, जिसमें वो बताते हैं कि ह्यूमनाइज कैसे किया जाए। मुझे इस पर भरोसा नहीं कि मैं किसी चीज को प्रमोट करूं, क्योंकि एआई खुद इस तरह लिखता है। अगर आपको लिखना आता हो तो आप खुद बेहतर काम कर सकते हैं। अब आप देखें, सारा मजमून आ गया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी चीज है जो मैं नहीं चाहता था। इसमें मेरी पर्सनलाइज्ड चीजें शामिल हैं। मैं जरूर इससे सवाल करूंगा और तरमीम करूंगा। एक बात और कि बहुत से लोग किताबों पर रिव्यूज लिख रहे होते हैं। आप सोचते हैं कि वो सारी किताबें खुद पढ़ते हैं। कुछ पढ़ते होंगे, कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर मैं पहले सर्च करता हूं, गिव मी लिस्ट ऑफ टॉप मोटिवेशनल बुक्स 2024। कौन सी टॉप मोटिवेशनल बुक्स थीं 2024 में? ये एक साइंसी तरीका है। अगर आप सीख लें तो आप अपनी सोशल मीडिया को बढ़ा सकते हैं या वेबसाइट पर ब्लॉग चला सकते हैं या अखबार में मजमून लिख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एआई ने बताया कि कौन सी बुक्स फेमस रही हैं 2024 में। मुझे ऑटोमिक हैबिट्स पसंद है। मैं इस किताब के बारे में पूछता हूं कि इसमें 8 अहम बातें कौन सी है जो सबको मालूम होनी चाहिए। वो 8 अहम बातें निकाल देगी। मसलन छोटी तब्दीलियों का बड़ा असर, आदतों के 4 कवायद, माहौल की ताकत, नाकामी से सीखना, वक्त दें, सब्र रखें। ये छोटी फहरिस्तें वो दे देगी। अब आप ये चीजें अपने लिए शाया करना चाहें तो आप कहेंगे कि मैं इसे सोशल मीडिया पर पब्लिश करना चाहता हूं। इब्तिदा में किताब का तारुफ लिखो, फिर इन 8 बातों को लोगों के लिए बताओ और आखिर में एक पैराग्राफ लिखो कि नौजवान खुद को किस तरह इन 8 असूलों में डाल सकते हैं। ये सब फैक्ट्स किताब के अंदर है तो यकीनी तौर पर वो दुरुस्त होंगी। अब वो आपके लिए सोशल मीडिया पोस्ट भी बना देगी। मिसाल के तौर पर, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी आदतें आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती हैं? ये किताब साइंस और कहानियों के जरिए बताती है कि बड़ी तब्दीलियां बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटे मुस्तकिल अमल से आती है। इस किताब की 8 अहम बातें जो हर किसी को जाननी चाहिए। अब आप ये पोस्ट लेकर अपनी सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं। मैं किताब का कवर तस्वीर लेकर पोस्ट में शामिल कर दूंगा। एक और मिसाल मैंने दी कि रिपोर्ट की मिसाल के बाद मैं एक इक्तिबास का जिक्र करता हूं जो मेरी दादी कहती थी। जबान के मुतल्लिक एक कहावत है। मैंने कहा कि यह कहावत मेरी दादी कहती थी और मैं चाहता हूं कि इसे मजमून की शुरुआत में अपने जाती अंदाज में लिखा जाए, फिर लोगों को दिखाओ कि अच्छा बोलने के क्या तरीके हो सकते हैं। अब वो इसके मुताबिक लिख देगी। आप देखें कि जब आप रोजाना लिखते रहे तो आपकी शनाख्त बनती है। जो अच्छा ख्याल या अच्छा कौल आपके इलाके में मिले वो आप लिखकर शेयर करें। तहरीर से आपकी शख्सियत झलकेगी।
آخر میں نے 3 طریقے بتائے ہیں جن پر آپ سوچیں۔ رائٹنگ کے لیے مزید کلاسز ہوں گی، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ کو کیسے لکھنا ہے، اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکھے ہوئے مواد کو کیسے استعمال کریں، کیسے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کریں۔ یہ العراف آن لائن اکیڈمی کی جانب سے فری اے آئی کا کورس ہے، جس میں آسان الفاظ میں عام لوگوں کو مصنوعی ذہانت سکھایا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور میرے لیے دعا کریں۔
رائٹنگ کے لیے مزید کلاسز ہوں گی. آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ کو کیسے لکھنا ہے، اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکھے ہوئے مواد کو کیسے استعمال کریں، کیسے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کریں. یہ العراف آن لائن اکیڈمی کی جانب سے فری اے آئی کا کورس ہے، جس میں آسان الفاظ میں عام لوگوں کو مصنوعی ذہانت سکھایا جاتا ہے. اپنا خیال رکھیں اور میرے لیے دعا کریں.